के बारे में करते हैं। What are ribosomes? स्क्रीन शेयर हुआ है ना? यस मैम। राइबोसोम्स, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइबोसोम्स दीज आर आल्सो नोन एज हॉर्स वर्क पावर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वर्क हॉर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो अभी जितने भी हमने ऑर्गेनेल्स देखे, ऑल दोज आर membrane bound, okay, double membrane. But what about this organelle? This is the only organelle which is not membrane bound, okay, and it is found in prokaryotes as well as eukaryotes. So based on sedimentation coefficient, it is of two types. What are they? 70s, 80s. Okay, 70s and 80s. What is sedimentation coefficient? Acha, 70s and 80s. What does S mean for? Swedberg unit. Swedberg unit. Swedberg unit. ये what does this Swedberg, it is the name of the scientist who discovered Theodore Swedberg. ठीक है, तो ये हेलो मैम, कुछ स्टूडेंट्स अलाउ होना चाहते हैं, आप उनको अलाउ कर दीजिए प्लीज। मैं 5 मिनट पहले इसलिए की थी, अब मुश्किल हो जाता है इसमें, इसलिए 5 मिनट मैंने पहले स्टार्ट किया, तो कम से कम ये चीज ध्यान रखना चाहिए ना। जी मैम। ठीक है, तो स्वेडबर्ग यूनिट, इसको थियोडर स्वेडबर्ग ने डिस्कवर, Swedberg, it is used to denote the मैम आपकी आवाज कट रही है। of this thing. There is some Hello? disturbance in your voice. Hello? यस मैम। Hello? यस मैम। ठीक है, हेलो, अब ठीक है एस मैम। है, तो जो 70 एस जो है, ये जो है दो सब यूनिट्स के बने, बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं? दिस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स मेनली, like bacteria and all, but in eukaryotes it is also found. Like last day we had covered मैम आपकी आवाज कट रही है। क्लोरोप्लास्ट। हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? अभी आवाज जा रही है क्लियरली? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये जो 70s राइबोसोम्स जो हैं प्रोकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होते ही हैं, और साथ ही साथ यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। लास्ट डे वी हैड डिस्कवर्ड कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो ये जो 70s है, ये दो सब यूनिट के बने होते हैं, वन इज स्मॉल सब यूनिट एंड द अदर इज लार्ज सब यूनिट। ठीक है, जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 30s का होता है, और जो लार्ज होता है वो 50s का होता है। ओके, यस हेलो, मैम। यस मैम। ठीक है। और दूसरा जो होता है, सेकेंड टाइप ऑफ दिस राइबोसोम इज ATS। ठीक है, this ATS it is completely found in यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में and also in nucleus.
just like 70S, it is made up of 2 subunits. ठीक है, the small subunit is 40S and the large one is 60S. Okay. Yes, ma'am. So this is the organelle which is not membrane bound. ठीक है. So its structure, I told it is made up of 2 subunits, small and large. So this is the small subunit and this is the large subunit. ठीक है. तो in this basically its function is protein synthesis. तो this जो राइबोसोम्स होते हैं, RNA sorry, RNAs होते हैं, what they do, it has a messenger RNA, it has 2 sites, A site and the P site. A site is also known as binding site or decoding site. Excuse me, ma'am. Hello. हाँ. I'm sorry to disturb again, मैम. एक लड़की का कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो वो अलाउ होना चाह रही है, आप प्लीज कर दीजिए. ठीक है. ये जो A site है, this is also known as binding site or decoding site. Okay. And the other, this one is the P site, जो लार्ज सबयूनिट में होता है. ठीक है ना. तो ये जो A साइट है, इस साइट में क्या होता है, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, that brings the amino acid to the A site, and this mRNA, messenger RNA, it will take the amino acid to this P site, and this process continues until a polypeptide is formed of desired length. So on this P site, the polypeptide of desired length is formed. So when this desired length polypeptide is formed, then tRNA binds to this P site हेलो हेलो. Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर नहीं ना हो रहा है. ये गौरव हद है. क्या No, ma'am. लगता है कि क्लास चल रहा है? क्या हम भी करें सबका बच्चा का. तो polypeptide is formed on this P site. Okay. So when desired length polypeptide is formed on this P site, the tRNA binds to this P site, and before this polypeptide is set free. Okay, this P site is also known as condensing site or peptidized site. स्पेलिंग कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क. ओके. क्योंकि ऑनलाइन क्लास में Yes. हाँ कोई कुछ बोलता नहीं है, सब गूगल से लिख लेते हो, और क्या क्या लिखते हो उल्टा सीधा. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, जो अभी तक होता आया है. ठीक है. तो जो भी है डाउट वो पूछ लिया करो. कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो तो वो अलग बात होता है. गूगल में क्या है, तुम लोग कहीं ब्रेनली ये क्या क्या चीज होता है, वहां से जो कि नॉर्मल बच्चे लोग ही शेयर करते हैं आंसर्स. तो बुक स्टैंडर्ड यूज किया करो.
Okay, this site is also known as condensing or peptidyl site. Okay, one thing I had missed in the beginning only. Who discovered it? First of all, this was observed by G.E. Palade. Palade in 1955. And before that, before this Palade, A. Claude in 1941, he had called it as microsomes. ओके, हेलो, Yes, ma'am. हाँ ठीक है, चलो आगे. Then next organelles, छोटे छोटे हैं, but these are all equally important. We cannot say it's not important. Glyoxysomes, glyoxysome पहले कह लें. ठीक है, तो अभी तक हमने जो ऑर्गेनेल्स देखा है, राइबोसोम को छोड़ के बाकी सब डबल मेम्ब्रेन था, बट दिस ग्लाइकोक्सिजोम इज सिंगल मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय बीवर्स in 1961. Its shape is spherical. हम लोग जब भी प्लांट सेल में व्हेन वी ड्रॉ दिस ग्लाइकोक्सिजोम, सिंपली हाउ वी ड्रॉ, एक सर्कल से डाल देते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं करते हैं. ठीक है, इट्स शेप इज स्फेरिकल and 0.8 microns diameter. ठीक है, so we draw the figure like this of a glyoxysome. Okay, it means it simply has a granular stroma, nothing else. And a single membrane bound. ठीक है, this contain enzymes of glyoxylate cycle. ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल पढ़े हो कहीं पर, कुछ नाम सुने हो आप लोग? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. लिपिड मेटाबॉलिज्म में कहीं कुछ पढ़े हो, नाम सुने हो? Yes, ma'am. हाँ, चलो, तो इसके ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के टू वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है. वन इज आइसोसाइट्रेट synthetase, and the other is malate synthetase. ठीक है, आइसोसाइट्रेट सिंथेटेज एंड malate synthetase. ठीक है, now this glyoxysomes, they are mainly found in tissues, I told, where fat is to be converted to sugars. ठीक है, sugars means carbohydrates. जैसे कि germinating fatty seeds, oil seeds, वहां वो रिच होता है, लाइक मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, जितने भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, यू कैन नेम देम.
क्लास में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही। तो वहां पर दीज ऑर्गेनिल्स आर इन abundance. The next organelle, peroxisomes. It was discovered by Talbot et al. अच्छा, what does it all means? colleagues, colleagues, हाँ, ma'am. workers. तो when we Colleagues, ma'am. write इटल ना, तो इटल इटैलिक्स में लिखते हैं, एल के बाद डॉट होता है, ठीक है। In 1968, from spinach leaf. स्पिनच जानते हो यस मैम। क्या होता है, खाते हो आप लोग? पालक को ही बोलते हैं स्पिनच में। यस, ठीक है। तो दिस पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं, इट इज सिमिलर टू ग्रायोक्सिसोम्स, साइज, शेप या जो इसका स्ट्रक्चर है, सब बिल्कुल ग्लाक्सिसोम्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। सर्कुलर होता है, इट हैज अ डेंस स्ट्रोमा, 0.8 microns in diameter, simply like this, same as that. So it contains enzymes of glycolate metabolism and it is also involved in photorespiration. मतलब ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, आप लोग फोटो रेस्पिरेशन पढ़े हो ना? फोटो रेस्पिरेशन पढ़े हो? हेलो? यस मैम पढ़े हैं। हाँ, तो फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन तीन ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। यस, ये तीनों ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स में क्या होता है? हेलो, यस मैम। याद है कुछ थोड़ा सा? मैम याद है तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है मैम। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है। जैसे आई टोल्ड ना, इट इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म एंड इन फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आरयूबीपी है, इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ CO2, isn't it, in the presence of रिबिस्को की जो ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी होती है उसके साथ बाइंड करता है। तो ठीक है, एंड इट फॉर्म्स 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, नहीं सॉरी, ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, इट फॉर्म्स दिस ग्लाइकोलेट, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट जो है यही ये ग्लाइकोलेट बनाता है, एंड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, देन दिस विल एंटर द पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, और यहाँ पर फिर इसको ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है, यही है ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलेट। ओके, हम लोग फोटोसिंथेसिस में और आगे डिटेल्स में देखेंगे। ओके, यस मैम। इट इज इन्वॉल्व इन photorespiration, basically we can say, yeah, enzymes involved in glycolate cycle. And then last one important organelle, spherosomes. These are also known as oleosomes, yeah, oil bodies. Okay, and it was discovered by Perner in 1953. ठीक है,
just like glyoxysome and peroxisome, ये भी simply it is spherical structure like this, but its diameter is small as compared to the earlier ones. It is only 0.3, 0.4. It can be even larger, or 3 microns in diameter, smaller or very sizes. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन. Sometimes double membrane may be also present, single or double, single or double membrane. And function is to store oils. ठीक है, it stores oil. In Zozoba, it is a plant. These spherosomes, they are called wax bodies. Instead, they are called wax bodies because they store wax instead of oils. Oils क्या होते हैं? Triglycerides, we call it triglycerides ना. तो आवाज आ रही है? हाँ, membrane as discrete solutions हैं. मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, एक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है जो कि मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, और इसका फंक्शन है कि दो या उससे ज्यादा स्फेरोसोम्स को बाइंड होने से बचाता है, उसके फ्यूजन से बचाता है. ठीक है, आवाज गई क्लियर? हेलो, यस मैम. ठीक है, हाँ ठीक है, चलो. तो ये सब ऑर्गेनेल्स हो गए. एंड कमिंग टू सेल वॉल, थोड़ा सा कर ले. मैम ईआर रह गया. क्या रह गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं कहीं पर देता है इट इज ऑर्गेनेल, बट इन फैक्ट इट इज नॉट एन ऑर्गेनेल. ठीक है, जो कि ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऑरिजिनेट होते हुए और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फ्यूज कर जाता है.
तो सिंपली इट इज नथिंग, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, नथिंग एल्स इन दिस। ठीक है, तो सेल वॉल जो इंपॉर्टेंट वंस थे, जिसके मेन फंक्शन थे मेजर ज्यादा, वो वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो रफ हुआ तो मेन तो राइबोसोम्स का फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो जो सेल वॉल है, इट इज, वी कॉल इट एन इलास्टिक स्ट्रक्चर या सेमी रिजिड स्ट्रक्चर। Generally, it is a non-living. The first day we had already told, and it is permeable, unlike plasma membrane. ठीक है, तो I also told कि it has 3 layers. The first one formed wall is the primary wall, then middle lamella, and then secondary wall. ठीक है, तो प्राइमरी वॉल जैसे कि, हाँ, लास्ट डे तो बता ही दिए थे वो चीज। प्राइमरी वॉल, it mainly consists of cellulose. ठीक है, एंड ये सेल्यूलोज क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा glucose primary wall. It is made up of mainly cellulose, and cellulose, it is a straight chain of beta D glucose which is joined by 1,4-glycosidic linkage. These glucose units, they are joined by 1,4-glycosidic linkage. In addition to cellulose, it may also contain some amount of lignin or hemicellulose, but mainly it is made up of cellulose. Some pectic substances, ठीक है, also it may also contain inorganic salts of silica and calcium. Salts of silica and calcium. तो जो सेल बनता है, सबसे पहले ये प्राइमरी सेल वॉल बन गया। ठीक है, एंड जब सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल्स के बीच में जो ज्वाइन कर रहा है, बाइंड कर रहा है, दैट इज मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो होता है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। तो ये जो पेक्टेट या जो पैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, वो, हेलो Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. तो ये जो lactic या पैक्टिक एसिड जो होता है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ पॉलीगैलेक्टुरोनिक एसिड, अल्फा इसमें अल्फा डी गैलेक्टुरोनिक एसिड, बहुत सारे गैलेक्टुरोनिक एसिड जो होते हैं अल्फा डी, इट इज जॉइंड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे कि सेल्यूलोज में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, सेल्यूलोज में जो ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन करता है वहां भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मिड लैमेला जो है, और प्राइमरी वॉल में जो सेल्यूलोज होते हैं वो भी हाइड्रोफिलिक होते हैं। ओके, तो ये दोनों जो है हाइड्रोफिलिक हैं। एंड देन इसमें एक और लेयर होता है, दैट इज सेकेंडरी वॉल। बट सारे जगह ये प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ये जो सारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लेकिन जो डेड सेल्स होते हैं लाइक ट्रैकीड्स, जहां की स्ट्रेंथ चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ट्रैकेट्स, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, मेनली ट्रैकेट एंड स्क्लेरेनकाइमा। एक मिनट होल्ड करो। हेलो Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टार्ट कर। हाँ हाँ ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रही थी क्या चीज, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो होता है मेनली इट इज प्रेजेंट इन डेड सेल्स लाइक ट्रैकीड्स एंड स्क्लेरेनकाइमा।
और ये मेनली सेकेंडरी वॉल जो होता है, ये मतलब इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। इट्स मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. Cellulose means hydrophilic in nature, and then sometimes lignin may also be present. Okay. And its function is, what is the function of plasma membrane? Sorry, cell wall. Oh, ये बताओ ना. हेलो, कट गया क्या? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई बोल नहीं रहे हो कि मेरी आवाज कट रही है ना? Audio. क्या Yes, है सेल वॉल का? Protection हाँ, screen. सेल वॉल का फंक्शन बनाओ, दो ही रिजिडिटी. हाँ, Protection गिव्स screen. रिजिडिटी, प्रोटेक्शन. ठीक है, यही तो छोटे से फंक्शन है इसके. रिजिडिटी, शेप, प्रोटेक्शन. ठीक है. द नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लोग थोड़ा कंप्लीट लिखा करो, ठीक है. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, विच इज, एक दिन मैंने बोला था, selectively differentially permeable membrane it will be better to call rather than semi selectively permeable membrane. ठीक है. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो बेसिक कंसेप्ट लिपिड बाइलेयर का लिपिड बाइलेयर का बेसिक कंसेप्ट जो है डैनियल डेप्सन ने दिया था. DANIELLI, डेप्सन, in 1935. ठीक है. डैनियल डेप्सन ने 1935 में इसका बेसिक कंसेप्ट, लिपिड बाइलेयर का बेसिक कंसेप्ट दिया. ठीक है. Later on in 1959, किस ईयर? 1959 में रॉबर्टसन उन्होंने जो मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर जो पहले दिया गया था उसको मॉडिफाई करके उसका जो स्ट्रक्चर रखा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा. And finally, in 1972, Singer and Nicholson, एक्चुअली इसके बीच में बहुत सारे जो था छोटे छोटे कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहे, लेकिन जो दो बेसिक मॉडल जो दिया गया, आई हैव ओनली टोल्ड अबाउट दिस थिंग्स. तो ये फाइनली ये जो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने मोज़ैक मॉडल जो कि अभी का है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया. ठीक है. तो ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, एज यू ऑल नो, it is made up of bilayer lipid and some integral or peripheral proteins are embedded in it. तो इसमें क्या है, बाइलेयर ये लिपिड होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर्स. ठीक है. एंड दिस लिपिड इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर. एम्फीपैथिक मींस, हेलो Yes, ma'am. हेलो, आवाज नहीं आ रही? एम्फीपैथिक मतलब क्या है? इट मींस इट हैज अ पोलर हेड, ये जो विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. दिस राउंड वन, it has a polar head which is hydrophilic in nature, and this one is non-polar tail
which is hydrophobic in nature. So these two lipid bilayer, it forms the liquid. It is in liquid state, not, ठीक है, not in gel state. तो लिक्विड लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जेल स्टेट में होगा तो स्ट्रेस कंडीशन में वो जेल स्टेट में हो जाता है। आप लोग नहीं पढ़े हो, हाँ ठीक है, ठीक है। और सर्टेन प्रोटीन्स दे फ्लोट इन दिस लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जहां तहां प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट होता है, एंड दिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन ये मोज़ैक पैटर्न देता है, इट गिव्स अ मोज़ैक पैटर्न। So these proteins, these globular proteins जो होते हैं, दे आर ग्लोब्यूलर। प्रोटीन का बहुत तरह के होते हैं, वो इट्स 4 टाइप्स। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है, और ये भी एम्फीपैथिक होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर पोलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कह सकते हैं। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ना, पूरे दोनों लेयर, लिपिड बाइलेयर के दोनों लेयर में जो रेड कलर मैंने ड्रॉ किया, वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। एक इधर प्रेजेंट होगा, दूसरा इधर प्रेजेंट होगा, मतलब दो इस तरह से। और क्या होता है, इसकी वजह से एक चैनल बनता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, दो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से एक चैनल यहां पर बन गया, ठीक है। जो दो ब्लैक कलर के हम देख रहे हैं ग्लोब्यूलर इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मतलब जो लिपिड बाइलेयर है इसी के बीच में ये प्रोटीन्स जो है फ्लोट कर रहे हैं, नॉट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ, ये जो पोलर हेड्स है ना, इधर नहीं, बीच में है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इनकी वजह से ये जो ग्रीन कलर का चैनल बना है, these channels they are known as aquaporins। और इनका फंक्शन क्या है, it facilitates the faster movement of water across the channels, ठीक है। अभी तुम लोग के वो सेमिनार में बहुत टाइम है भाई, सो गए क्या? No, ma'am. मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मोज़ैक पैटर्न में, ठीक है। और लेकिन लेटर ऑन इन 1974 कुछ हेड है ना, इस जो पोलर प्रोटीन है, सॉरी पेरिफेरल प्रोटीन, इट वाज आइडेंटिफाइड बाय सिंगर, ठीक है। तो बस शॉर्ट में इतना ही पढ़ना था आप लोग को। सेल रजिस्टर कहाँ चल गया, रजिस्टर कहाँ रह गया? हेलो, 1 मिनट अटेंडेंस ले रही हूँ। स्क्रीनशॉट लिए हो क्या आप लोग?